Hi guys, so I have very interesting question in front of you. These all five questions which I will discuss right now with you guys are so important for NEET PG point of view also, and I would like to discuss and explain these questions in depth. So a 5-year-old boy is there, Burkitt lymphoma है, उसको ARDS है, then urine output decrease हो जाता है, HB, TLC, platelet count you can see, serum potassium, serum calcium, creatinine is given. The important drug for the emergency treatment is all of the following. Let's discuss now. So first of all, what happens? I would like to discuss here. Whenever there is Burkitt lymphoma, right? Whenever there is Burkitt lymphoma, now what happens? It grows very rapidly. Okay, so कीमोथेरेपी जो होता है वो बहुत सारे कैंसर सेल्स को खत्म करता है, ठीक है. एंड इससे क्या होता है कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम देखने को मिलता है, TLS वी कैन नोटिस. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस थिंग, सेल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक है. डीएनए जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू यूरिक एसिड, ठीक है, इनटू यूरिक एसिड. एंड जो कैल्शियम है वो फॉल कर जाता है बिकॉज फॉस्फेट जो है वो बाइंड करता है विद कैल्शियम. ओके, सो नाउ द यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं. यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल्स इन द किडनी. ओके, एंड फर्दर इट कैन कॉज द AKI. So this is the whole thing. Now what happens, we need to understand, this is the basic physiology of the tumor lysis syndrome. Now what happens, we need to understand ras buricase, there is a drug. Okay, now it converts basically uric acid to allantoin. इट कन्वर्ट्स यूरिक एसिड टू एलेंटोइन. ओके, ना एलेंटोइन जो है वो बहुत सॉल्युबल होता है और ये इजीली एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, ठीक है. ये यूरिन में आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है. सो देयरफॉर रिड्यूस हो जाते हैं यूरिक एसिड के लेवल. यूरिक एसिड लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड इससे क्या होता है कि जो AKI के चांसेस हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं. नाउ लेट्स सी द अदर ऑप्शंस. नाउ अदर ऑप्शंस आर डेक्सामिथासोन. डेक्सामिथासोन इज अ स्टेरॉइड, नॉट एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ TLS. सो अगेन दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. देयर इज नो स्कोप ऑफ इन्फेक्शन वी कैन सी, सो एंटीबायोटिक्स का कोई यूज नहीं है. एंड फॉलिनिक एसिड रेस्क्यू हम लोग यूज करते हैं मेथोट्रेक्सेट में, नॉट इन द केस ऑफ TLS, ठीक है. सो अगेन दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन एंड हेंस दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट कन्वर्ट्स यूरिक एसिड टू एलेंटोइन. Next is consider the following statements regarding the human milk banking. Okay, and human milk banking में क्या होता है कि the bank accept voluntary milk donations from lactating women who are given nominal payments. No, so it is voluntary and unpaid. First of all, it is voluntary and unpaid. Okay, so this is a wrong option. Donor mothers are screened via blood test, HIV, hepatitis B, and similar to blood donation. This is absolutely correct statement. HIV, hepatitis B, C, medical history, lifestyle risk factors सब कुछ पूछे जाते हैं. Pasteurized donor milk reduces the chances of NEC in preterm neonates. This is 100% correct. Human milk protects against NEC, sepsis and feeding intolerance. Okay, so these all points are important. And the last is that pasteurized donor milk is non-inferior to fresh mother's own milk. So this is a wrong statement. Mother's own milk, MOM, is always the best. It contains the immune cells. Okay, it contains the immune cells, it contains the fresh antibodies, okay, growth factor, okay, and better nutrition. So MOM is always far superior. So hence 2 and 3 is the correct statement here. Now next is the a term neonate weighing 2 kg delivered to a primigravida mother through vaginal route and through clear liquor is found having gasping respiratory efforts after performing the initial steps in the delivery room. Okay, the next step in resuscitation is, okay, so here is a 2 kg baby is 2 kg baby is there, clear liquor is there and gasping after initial steps. So first of all we will do the positive pressure ventilation with bag and mask using the room air. Okay, so now according to the neonatal NRP की जो guidelines हैं उसमें क्या होता है, let's discuss first of all that. तो उसमें clearly बोला है कि immediately आपने क्या करना है, bag and mask वेंटिलेशन जो कि PPV कहते हैं जिसे, उसको स्टार्ट करना है फॉर टर्म बेबीज. ओके, एंड हम लोगों ने साथ में 21% ऑक्सीजन देना है रूम एयर पे, ठीक है, नॉट ऑक्सीजन 80%, रूम एयर 21% हम लोगों ने देना है. इंट्यूबेशन अब हम क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक समझने की बात है. इंट्यूबेशन हम क्यों नहीं करते हैं, इंट्यूबेशन हम इसलिए नहीं करते हैं अनलेस वेंटिलेशन जो है वो इनफेक्टिव है, कंजेनेंटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया का केस है, मेकोनियम ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, या चेस्ट कंप्रेशन की जरूरत है, तब तक हम लोग इंट्यूबेट नहीं करते हैं, ठीक है. पहली चॉइस हमारी हमेशा आपने याद रखना है, अगर मेकोनियम CDH या इस तरह की वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है या चेस्ट कंप्रेशन की बात नहीं हो रही है, आपने बैग एंड मास्क वेंटिलेशन PPV पे ही जाना है. एंड हम लोगों ने और दूसरी चीज़ 21% को हम लोग याद रखेंगे. तो सीक्वेंस कैसे होता है, सबसे पहले वार्म करना है, पोजीशन करना है बच्चे को, क्लियर करना है एयरवे को, राइट, इफ़ नीडेड ड्राई करेंगे हम बच्चे को, फिर हम उसके बाद स्टिमुलेट करेंगे, हम लोग उसके बाद स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद अगर स्टिल गैस्पिंग हो रही है तो हम लोग PPV विद रूम एयर देना पसंद करेंगे, ठीक है. तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन हियर, इनिशिएट PPV विद बैग एंड मास्क यूजिंग रूम एयर, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंट्यूबेट का मैंने आपको बता दिया ये गलत है, इंट्यूबेट का मैंने आपको बता दिया गलत है, इट्स नॉट 30%, इट इज 21%, ठीक है. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 102, दैट इज न्यूबॉर्न एक डिलीवर हुआ है, एब्डोमिनल रेडियोग्राफ जो है मल्टीपल एयर फ्लूइड्स दिखा रहा है विद एब्सेंट
distal gas pattern, the most likely etiology is. Now let's discuss this question. The bilious vomiting on the first day of life always means that there is a intestinal, ये बहुत ज़रूरी point है, bilious vomiting day 1 पर always means that कि कुछ तो intestinal obstruction है, otherwise proven. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है. नाउ इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जेजिनो इलियल एट्रेजिया की. जेजिनो इलियल एट्रेजिया की इसमें क्या है कि बिलियस वॉमिटिंग हमें देखने को मिलेगी. ठीक है, फेलियर टू पास मिकोनियम देखने को मिलेगा, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, मैल न्यूट्रिशन क्यों नहीं है इसका आंसर? मैल न्यूट्रिशन सॉरी मैल रोटेशन, आई एम सो सॉरी, मैल रोटेशन विद वॉल्वुलस क्यों नहीं है इसका आंसर? मैल रोटेशन विद वॉल्वुलस इसलिए नहीं है क्योंकि वॉल्वुलस जो है वो बिलियस वॉमिटिंग के साथ एक शॉक लाइक कंडीशन, एक ब्लडी स्टूल्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. एक बहुत इल बच्चा देखने को मिलेगा. एक्सरे का कोई खास रोल नहीं है. मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स जो हैं वो आपको जेजिनो इंटेस्टाइनल एट्रेजिया में देखने को मिलेंगे. और जो मैल रोटेशन विद वॉल्वुलस है वहाँ पे बिलियस वॉमिटिंग के साथ शॉक देखने को मिलेगा, ब्लडी स्टूल्स देखने को मिलेंगे और एक्सरे का कोई खास रोल है नहीं. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपर जीआई कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं. अपर जीआई कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, एचपीएस. ये जो है ये नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यहाँ देखने को मिलती है. ठीक है, एंड ऑल्सो नॉट एट 12 आवर्स. तो टाइम इंटरवल भी गलत है, 12 आवर्स पे नहीं होता है. इट जनरली अकर्स एट 2 to 8 वीक्स. तो नॉन बिलियस है और टाइम इंटरवल भी हमारे क्वेश्चन के साथ मैच नहीं हो रहा है. और जो NEC है, ठीक है, NEC जो है वो प्री मेच्योर बच्चों में देखने को मिलता है. प्री मेच्योर बच्चों में देखने को मिलता है आफ्टर फीड बिगिंस. तो ये सारे पॉइंटर्स जो हैं ये आपकी हिस्ट्री में दिए होंगे, उससे आपने आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल एज दैट यहाँ याद रखना है, बिलियस वॉमिटिंग है, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल है, एब्सेंट डिस्टल गैस है. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंटर्स हैं ये इंटेस्टाइनल एट्रेजिया की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं. और इंटेस्टाइनल एट्रेजिया कौन सा होता है? जेजिनल इलियल atresia. Okay, now let's move on to consider the following statement regarding the management of TEF in neonates. Okay, so now the baby should be nursed in prone position. This is absolutely wrong. His head should be elevated at 30 to 45 degree. Okay, semi upright position होनी चाहिए. ठीक है, semi upright position होनी चाहिए. Next is the neonate should be kept nil per orally and started on intravenous fluid. That's true because milk can enter the lungs. ठीक है, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है यहाँ पे. कॉन्टिन्यूस सक्शन, oral suction using a slow suction device, this is true. A tube is being provides all the continuous suction of the saliva वो करती है from the upper pouch. सारा saliva वो drain करती है जिससे कि aspiration pneumonia ना हो जाए. So this is very important. Surgery should be planned once a neonate attains 2.5 kilograms. This is absolutely false. Surgery is performed once a baby is stabilized. तो बेबी का स्टेबलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वजन से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई recommendation नहीं है. Hence 2 and 3 is the correct option. I hope these are very interesting questions. I hope you gotten good insight on these 5 questions. They were very good questions. I really would like to discuss more questions from this paper. If you want I should discuss more questions, do write in the comment section.